ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ کہ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تابڑ توڑ کارروائیاں کی۔ مجموعی طور پر 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے پشین میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے بھی اڑا لیا۔ ہلاک دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں اور آپریشن کے بعد ان کے قبضے سے اسلحہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع DI خان میں سیکورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے خوارج کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جانب سے دونوں علاقوں میں کسی بھی دیگر ہندوستانی اسپانسر شدہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن مسلسل جاری۔ تو دوسری جانب بنوں میں دہشت گرد حملے میں جامع شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل گل فراز شہید کی نماز جنازہ مانسہرہ جبکہ سپاہی کرامت شاہ کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کی گئی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں قومی وقار اور عسکری اعزاز کے ساتھ تدفین دی گئی۔ نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران، مقامی عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ دونوں جوانوں نے بنوں میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے کے دوران فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے جامع شہادت۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت بہادری کو سراہا۔ آصف زرداری نے کہا کہ خوارج کو ہلاک کرنا فورسز کی قابلیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کا مظہر ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں ملک کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ خوارجیوں اور ان کے سہولت کاروں کو پاکستان میں کہیں بھی چھپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان نے مستند اور قابل اعتماد انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر افغانستان میں دہشت گردوں کے مرکزی ٹھکانوں پر فضائی کارروائی کی ہے۔ متاثرہ علاقوں تک میڈیا کی رسائی روکنے سے افغان طالبان رجیم کی منافقانہ پالیسی اور دہشت گردوں کی پشت پناہی سامنے آ گئی۔ پاکستانی فضائی کارروائی کے متاثرہ مقامات پر طالبان نے افغان میڈیا اور مقامی شہریوں کی رسائی محدود کر دی۔ ریاستی زیر انتظام افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج دکھائی جبکہ باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ پکتیکا، خوست اور ننگرہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد طالبان فورسز نے کئی علاقوں کو گھیر لیا اور دہشت گرد کئی سالوں سے یہاں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ خوگانی، ننگرہار، خوست اور دیگر علاقوں میں صحافیوں کی رسائی کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز نے یہ پابندیاں سوال پیدا کر رہی ہیں کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اور کارروائیوں کے مکمل اثرات کیا ہیں۔ ماہرین کے مطابق آزاد میڈیا کو رسائی نہ دینا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ طالبان زمینی حقائق چھپانے میں مصروف ہیں۔ مستند شواہد سے واضح ہے کہ افغانستان فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان سمیت عالمی دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ میڈیا پر پابندی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ طالبان رجیم کی مکمل سرپرستی میں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ ایک اور اہم خبر کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران دہشت گرد سلیم بلوچ مارا گیا، جسے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور دیگر نام نہاد انسانی حقوق کے تنظیموں نے لاپتہ قرار دیا تھا۔ سلیم بلوچ فتنہ ہندوستان اور رو سے منسلک کارروائیوں میں ملوث تھا اور حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے دوران تربت میں سیکورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فتنہ ہندوستان کے ذرائع نے سلیم بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نام نہاد لاپتہ افراد کے بیانیے کے پیچھے دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی سازش چھپی ہوئی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نوجوانوں کو احساس محرومی کے گمراہ کن بیانیے میں الجھا کر بالآخر فتنہ ہندوستان کے حوالے کر دیتی ہے اور یہ تنظیم دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ایک صاف چہرہ فراہم کرتی ہے۔ فتنہ ہندوستان بلوچستان کے نوجوانوں کے جذبات بھڑکا کر انہیں مسلح بغاوت اور دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں بلوچستان میں ہلاک ہونے والے متعدد دہشت گرد بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں۔
सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में क़यामी अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दे रही है और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान सिर्फ जनाजे नहीं उठाएगा बल्कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब भी देगा। उनका कहना था कि हालिया दहशत गर्दी के बाज़ वाक़यात में अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत पुरआज़्म है। कौम और सिक्योरिटी इदारे मिलकर मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त देंगे। आईजी सिंध जावेद आलम उडू की सरबराही में कराची में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का आला सतह इजलास हुआ है। इस इजलास में एडिशनल आईजीज़ और सीटीडी और स्पेशल ब्रांच डीआईजी हेडक्वार्टर समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सरहद पार अमन अमान की गैर मामूली सूरत हाल के बाद मौसूल होने वाली खुफिया इत्तलात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया और मुमकिना ख़तरात से निमटने के लिए जाम हिकमत अमली पर गौर किया गया। हसास सरकारी और निजी तनसीबात और अहम मकामात की सिक्योरिटी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि सीटीडी और स्पेशल ब्रांच ज़िले पुलिस को बर वक्त इंटेलिजेंस फराहम करे। गदागरों के खिलाफ पुलिस इक़दामात तेज़ रफ्तारी से जारी है। खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस का हतमी शेड्यूल सामने आ गया है। शहबाज शरीफ 2 से 5 मार्च तक रूस का सरकारी दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वफ्द में शामिल हैं। आला सतह का हुकूमती और कारोबारी वफ्द वज़ीर आज़म के हमरा रूस पहुँचेगा। 2 मार्च को वज़ीर आज़म मास्को पहुँचेंगे। 3 मार्च को गुमनाम सिपाही की यादगार पर फूल चढ़ाएंगे और क्रेमलिन में सदर व्लादिमीर पुतिन से यहाँ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक रूस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर आला सतह की मुशावरत मुतवक्के है, जबकि तवानाई, तेल और गैस और तिजारती ताउन एजेंडे में शामिल हैं। स्टील मिल और सनती ताउन पर पेशरफ्त का इम्कान है, जबकि दौरान मुलाकात 2 तरफा तिजारत बढ़ाने और बैंकिंग चैलेंजेस पर बातचीत का इम्कान है। वज़ीर आज़म 4 मार्च को पाक रूस बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे, जिसमें 90 पाकिस्तानी कंपनियां बिजनेस फोरम। बाबर ने महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकर्रुरी को चैलेंज करते हुए आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त शौकत अजीज सिद्दीकी के तवस्सुस से दायर की गई। दरख्वास्त में सदा की गई है कि महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर के तौर पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए और केस के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल रखा जाए। स्पीकर को पहले ये जांचना चाहिए था कि अपोजिशन लीडर की नामजदगी आज़ादाना और आईनी तरीके से हुई या नहीं हुई। अब बानी पीटीआई से मामलात ठीक करें, वादा करता हूं कि आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तौबा का करने का है। बानी पीटीआई की आंख का मामला ज़ेर बहस रहा, हमें तशवीश थी। हमने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी धरना दिया। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे ताले लगाकर बंद कर दिए गए। क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? बानी पीटीआई के इलाज का मुतालबा कर रहे हैं, इन पर जाली पर्चे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। रावलपिंडी में 26 नवंबर थाना सादिकाबाद एहतजाज केस की समाअत हुई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने इस केस की समाअत की है। अदालत ने अलीमा खान के 14वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के दोनों गारंटर्स के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने अलीमा खान और उनके दोनों गारंटर्स को गिरफ्तार करके कल पेश होने का हुक्म दे दिया। मुकदमे के दोनों आखिरी तफ्तीशी अफसरान गवाहान को भी कल तलब कर लिया गया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अलीमा खान दानिस्ता ट्रायल में रुकावट डाल रही हैं, हक़ इजरा ख़त्म किया जाए और अलीमा खान के लिए सरकारी वकील मुकर्रर करके ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। समाअत के दौरान अलीमा खान और वकील सफाई पेश न होने पर अदालत ने सख्त बरहमी। शिकारपुर में न्यू फौजदारी थाने की हुदूद जरखेल लिंक रोड पर कायम पुलिस चौकी पर मुसल्लह मुल्ज़मान ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया।
पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमले के दौरान एहलकार सफीर संजरानी शदीद फायरिंग की जद में आकर मौके पर ही शहीद हो गए और जराये के मुताबिक नामालूम हमला आवर एहलकार का सरकारी असलहा साथ लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़वा पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी भी कर दी गई है, जबकि शहीद एहलकार की मैयत को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इजलास में बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया गया। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग दी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। पंजाब के हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन मैसर होगी। मरहूम के अहल खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैयत को अस्पताल दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक हुए। शहर भुट्टो और कोरंगी कॉजवे पुल 67% मुकम्मल, करीमाबाद अंडरपास 85%, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास 75% मुकम्मल कर लिया गया। स्कीमों की लागत 86.94 अरब, कराची के लिए 38.83 अरब मुख्तस, 22.36 अरब जारी किए गए, 13.15 अरब खर्च हो चुके। 24 टाउन्स में सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब, 26 बड़ी सड़कों की मरम्मत के लिए 8.53 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक मंसूबों की तकमील में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारी फंड्स का मौसर इस्तेमाल, गैर मयारी तामीरात पर जीरो टॉलरेंस, ओवरसाइट कमेटी माहाना रिपोर्ट पेश करे। बेहतर सड़कें, हमवार ट्रैफिक और मयार जिंदगी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि कराची की तरक्की सिंध की तरक्की है। अवाम को नजर आने वाले नताइज हर हाल में यकीनी। पीपल्स पार्टी अपना नाम बदल कर सिंध पीपल्स पार्टी रख ले। पीपल्स पार्टी को अपने 18 बरसों की कारकर्दगी का जवाब देना होगा। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डंपर हादसात का शिकार और नालों में गिरने वालों को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? हुकूमत कराची वालों पर होने वाले जुल्म की तहकीकात क्यों नहीं करती? पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पीपल्स पार्टी लसानी झगड़ा करवाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के पास 2 गवर्नर, 1 सदर और तमाम आईनी इदारों की सरबराही है। पीपल्स पार्टी को सिंध का गवर्नर बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि सानिया गुल प्लाजा में 18 साल हुकूमती दौर की बेज़ाब्तगी नुमाया है और ये वाक़या बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। उन्होंने दावा किया कि सानहे से मुतालिक चौंका देने वाले दस्तावेज़ात सामने आए हैं जो मुबैना बेकायदगियों की निशानदही करती हैं। सानहे के वक्त सबसे पहले गवर्नर सिंध मौके पर पहुंचे, जबकि जिम्मेदारान के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होना अफसोसनाक है। क्या किसी सियासी जमात को दोबारा ऐसे सानहात की इजाज़त दी जा सकती है और क्या इंसानी जानों की कोई हैसियत नहीं? डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि सानहा गुल प्लाजा की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोक। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जमात इस्लामी के रहनुमा मुनम जफर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि जमात इस्लामी ने रमज़ान मुबारक में भी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि सोल्जर बाजार और नाजमाबाद के वाक़यात पर रेस्क्यू ऑपरेशन सबके सामने हुआ और मुतालिका इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की। उनका कहना था कि ये एक इनफरादी मामला है और इसमें किसी किस्म की सरकारी गफलत का कोई ताल्लुक नहीं। सादिया जावेद ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा के मुतासरीन की बरवक्त मदद की और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मजीद कहना था कि कराची के 9 टाउन्स पर विराजमान लोग अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए झूठ बेचने की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जमात इस्लामी को कराची में अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि अवाम हक़ाइक़ से आगाह हैं और अपने बेबुनियाद इल्ज़ामात से सच को छुपाया नहीं जा सकता।